अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेब लर्नर्स। आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस पर एक वेबसाइट बना सकते हैं फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन के साथ। उसके बाद आपको थीम इंपोर्ट करना बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा का स्टार्टर टेम्पलेट भी कंप्लीट इंपोर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद उसको एलिमेंटोर के ज़रिए कैसे टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करते हैं, कैसे होम पेज को किसी और पेज को कस्टमाइज़ करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस ट्यूटोरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस पे फ्री डोमेन होस्टिंग के साथ वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आपको टेम्पलेट को इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। उसके बाद इसको एलिमेंटोर के ज़रिए कस्टमाइज़ करना सिखाऊंगा। इसलिए आप इसको एंड तक ज़रूर देखना कि आपसे कोई भी एक स्टेप मिस ना हो। इसलिए तो वॉच टू द लास्ट you that how you can create a free professional WordPress website by using the free domain and free hosting like this, which you are seeing right now on the screen. So I have divided it in the 3 parts. So the first one, that is, you will have to create an account on ProFreeHost. ProFreeHost is a platform where you can create a domain name, and it will provide free hosting to us to manage to host our WordPress website. So you are seeing here many options. You will have to click on the register now. I have registered already, that's why I'm clicking on login button. So I'm here in the login panel. I am adding my details, login details, which I have added before. So after the clicking on OK, it will redirect you to the domain creation panel. So I'm scrolling down. As you can see that there are already 2 domains which I have created, and here you can only create 3 accounts per account. You will have to if you have created less than 3 domains, then you can click on the create new account. By the way, you can create new domain. So I'm clicking on the create new domain, so click it. So as I have clicked here, the next is the create a domain name. Recently I created the account of Proferios. Now I'm creating the domain name. As you can see, there is a create new website. Here I will add the new domain name, this which is available or not. You will have to create a unique domain name which does not exist already. So I have created the new domain name. So now click on the OK. As I will click OK, it has redirected me to the new domain or the account panel, where you can see that I have created the 3 accounts out of 3. It's in under pending. Then I'm clicking refresh. As you can see that my account has been created successfully. Now I'm clicking manage an account because I have to install the WordPress. And the third part of this video, of this tutorial, is a WordPress installation on our domain. So as I have clicked on manage, now you can see an option here named control panel. You will have to click on it. As I have clicked, it will redirect us to the new control panel of the domain, where we can control all the things of domain to install WordPress, or everything, the file manager. As in an important notice will come, you will have to click I approve. After that, it will redirect to the control panel of the domain. As you can see, the thanks panel is been loading. So scroll down, here you can see the option of software. You will have to click here on the software installation.
and here after it has redirected us to another tab. Here you can see the top scripts and there's a WordPress. You'll have to click on install on the WordPress tab. So scroll down, you can see an option of named install. It will help us to install our WordPress on our domain. You will have to wait for a moment. It says it take 3 to 4 minutes, but I think it take less than 1 minute or 2 minutes. So wait a moment. As you can see now, that's congratulations, the software was installed successfully. By clicking on this, you can see your website how it looks like. Now you can see it's a plan website which is created by the WordPress. You can see the domain name, that is the newweblearners.unaux.com, and you can see the WordPress logo too. कि मैं आप कैसे WordPress पर थीम चेंज कर सकते हैं, कि कैसे एक वंडरफुल एंड अमेजिंग थीम कर सकते हैं। इसके बाद आपको कस्टमाइज़ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो थीम चेंज के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा थीम चूज़ करना होगा। तो वर्डप्रेस एडमिन सेटअप खोलने के लिए आप अपनी यूआरएल के साथ जो पूरी यूआरएल है उसके आखिर में आपको WP एडमिन ऐड करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं तो आगे चलते हैं। देखें मैंने यूआरएल के सामने WP एडमिन लगाया है, जो अब मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस खुलने के बाद आप पूरा सेटअप देख सकते हैं कि साइड में ऑप्शंस भी बहुत हैं, जैसा कि होम, पोस्ट, मीडिया, मोस्ट एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे देखें कि अपीयरेंस में थीम का टैब है, उस पर क्लिक करें। उसे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास एक और मेन्यू खुला आया है, जिसमें आप ये थीम है जो आपकी करंट थीम है, जो कि अभी आपकी साइट पे लगी हुई है। न्यू साइट लगाने के लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने बहुत से थीम्स आ गए। एक जो आपका करंट एक्टिव है, उसके बाद दूसरी थीम से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम लगा सकते हैं, जैसा कि बहुत से थीम मैगज़ीन स्टाइल में, ई कॉमर्स स्टाइल में, बिज़नेस स्टाइल में बहुत से थीम्स अवेलेबल हैं। तो सेकंड चीज़ वो है कि आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हमें स्टार्टर टेम्पलेट्स, फुली कंप्लीटेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेगा। एक्स्ट्रा फाइंड करने के बाद आप को जो फर्स्ट में ये टैब नज़र आ रहा है जिसका नाम है एक्स्ट्रा, इसको आपको क्लिक करना होगा। इसके क्लिक कर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसके इंस्टॉल को क्लिक करें। इंस्टॉलेशन कुछ ही सेकंड्स की होती है। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट करना होगा अपने वर्डप्रेस पर। जो देख सकते हैं कि आप इंस्टॉल हो चुका है एक्स्ट्रा। अब इसको मैंने एक्टिवेट किया है, जो कि अभी फुली एक्टिवेटेड भी हो गया है। फुली एक्टिवेटेड भी है, जैसे देख सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये पहले कैसा था अभी कह रहे बिफोर एंड आफ्टर, बट जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये वैसा लुक वैसा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट उसको पूरा इंपोर्ट करना होगा। स्टार्टर टेम्पलेट एक्स्ट्रा की मदद से इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि थोड़ा स्क्रॉल अप करें। वहाँ पे आपको थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा के नीचे एक टैब नज़र आएगा गेट स्टार्टेड के नाम से। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, जो कि अब शुरू एक्टिवेट करेगा एक्स्ट्रा को आपकी वर्डप्रेस पर। अब जो कि ये एक्टिवेट हो चुका है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा पेज बिल्डर इस्तेमाल करेंगे, एलिमेंटर इस्तेमाल करेंगे, विज़े करेंगे, कौन सा करेंगे आप। तो एलिमेंटर ही ईजी है, एलिमेंटर क्योंकि यूज़ करने में उसके बहुत से यूज़र्स हैं, ईजी रहता है यूज़ करने के बाद। कोई बिल्डर चूज़ करने के बाद लॉट्स ऑफ थीम्स आर हेयर। अब थर्ड पार्ट है जो कि आपको इंपोर्ट टेम्पलेट। अब
अब आप कोई सा भी टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो से ऑप्शंस भी हैं कि कौन से थीम्स होने चाहिए, कि वो ब्लॉग स्टाइल में हो, बिज़नेस में हो, ई कॉमर्स में हो, कौन सा है। तो बिज़नेस चूज़ करें या आप जिसकी भी रेलिवेंट है वो चूज़ करें। तो मुझे ये बहुत से थीम्स आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टोर के हैं, ऑनलाइन एक पिज़्ज़ा शॉप्स का है जिसके आप देख सकते हैं। आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो उसके लिए हैं। तो स्क्रॉल अप करके मुझे एक थीम पसंद आया है, ये आउटडोर एडवेंचर वाला। तो इस आउटडोर एडवेंचर को मैं क्लिक करूँगा क्योंकि ये मुझे पसंद आया और मुझे अच्छा भी लग रहा है। उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कस्टमाइज़ भी करना सिखाऊंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं, पेज टेम्पलेट्स भी आ गए हैं। तो आपको इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करना होगा। इंपोर्ट कंप्लीट साइट के बाद आपसे वो कुछ ऑप्शंस वहाँ पे होंगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप वर्डप्रेस में इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। अगर आप इंटरमीडिएट तो इंटर लिख सकते हैं। आप किसके लिए बनाना चाहते हो, अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। तो मैंने लिखा है कि मैंने ये अपने लिए ही बनाना चाहता हूँ। तो ये कुछ टाइम लेगा पूरे कंप्लीट टेम्पलेट को इंपोर्ट होने में लिए हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है हमारे साइट पे। तो इसको देखने के लिए कि हमारी साइट कैसे लगती है, तो इसको व्यू साइट पर क्लिक करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे टेम्पलेट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब देखें, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ कि वैसी वेबसाइट जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वैसी अब आपको मैं इसका बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाता हूँ कि ये कैसे पहले नज़र आ रही थी और अब कैसे आप देख सकते हैं बहुत ही चेंजिंग हो गई, क्योंकि हमने इसमें टेम्पलेट को इंपोर्ट किया। ये उसी एक्स्ट्रा के टेम्पलेट को कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एलिमेंटोर के ज़रिए, जो कि एक पेज बिल्डर है। तो एडमिन डैशबोर्ड में जाने के लिए इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट के आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना होगा, जो कि एक प्लगइन है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कि आपको प्लगइन ऑप्शन के बाद ऐड न्यू में जाना होगा। अगर आपने एक्स्ट्रा का स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट कर दिया वेबसाइट पे तो डेफिनेटली आपका एलिमेंटर प्लगइन एक्टिवेट किया होगा आपके वर्डप्रेस पर। अगर नहीं किया तो आप इसका भी तरीका देख सकते हैं कि उसमें जाके सर्च ऑप्शन में एलिमेंटर टाइप करें। उसके बाद आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर एक प्लगइन नज़र आ रहा है, आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट आपको करना होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्टर टेम्पलेट एक्स्ट्रा का इंपोर्ट किया था, इसी वजह से मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड है मेरे वर्डप्रेस पे। उसकी लिंक में आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पे दे रहा हूँ। तो कस्टमाइजेशन स्टार्ट करने के मैंने दो कस्टमाइज टेम्पलेट करना है एक्स्ट्रा का। तो इसको कम्प्लीटली कस्टमाइज़ करने के लिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसकी इमेजेस को कस्टमाइज़ करूँगा, उसके बाद टेक्स्ट को, उसके बाद बटन्स को कस्टमाइज़ करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेजेस को आप देख सकते हैं कि ये वही वेबसाइट है हमारी जो अब हम एलिमेंटोर के ज़रिए जिसको हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं, यही वही टेम्पलेट, वही ये थीम है। तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे वाली माउंटेन वाली पिक्चर, इसको हमने चेंज करना है। तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसके बीच वाले बटन को प्रेस करना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे न्यू टैब आपका खुला हुआ है, इसके बीच वाला ऑप्शन आप यहाँ पे बहुत से ऑप्शन देख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन के दरमियान एक ऑप्शन है स्टाइल के नाम से। तो स्टाइल के बटन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक इमेज बार देख सकते हैं, इमेज का ऑप्शन है जिसको क्लिक करके हम अपनी इसमें इमेज रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो पहले लगी हुई इसको रिप्लेस करते हैं। तो सेलेक्ट फाइल्स करने के बाद आप की कोई भी फाइल जो आपने रखी हुई है जिसको आपने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इसको रिप्लेस करना है, उसको क्लिक करें, उसको चूज़ करें। तो चूज़ करने के बाद इसको इंसर्ट मीडिया कर दें ताकि वो हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा वो थीम जो कि पिक्चर जो हमने अभी रिप्लेस की है वो हमारे
वर्डप्रेस पे सक्सेसफुली हो गई है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, हम ये वाली इमेज चेंज करना चाहते हैं। इसका भी यही सेम तरीक़ेकार है। इस ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको इमेज का ऑप्शन है, चूज़ इमेज का, उसके क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल्स, और जो आपने फाइल इसके लिए चूज़ की हुई है वही फाइल चूज़ करें। उसको क्लिक करने के बाद इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे ये इमेज रिप्लेस हो जाएगी पिछली वाली इमेज से। इसी तरीके से आप इसके साथ वाले को भी चेंज कर सकते हैं। यही तरीका है किसी भी टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करने के लिए एलिमेंटोर के ज़रिए। इस इमेज को भी फर्स्ट वाली इमेज की तरह कस्टमाइज़ करेंगे, जिसके आप इसको ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर स्टाइल में आएँ, उसके बाद इमेज का ऑप्शन है चूज़ इमेज का, वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स में जो आपने फाइल्स इसके लिए चूज़ की हुई है, आपका कोई भी टेम्पलेट है, हेल्थ में है, आपके ने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है या XYZ कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी है, उसमें इंसर्ट मीडिया करें तो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स, आई थिंक 1 या 2 सेकेंड्स के अंदर आपकी इमेज सक्सेसफुली रिप्लेस हो जाएगी। तो नीचे जो इमेज हैं, आपको इन इमेजेस को भी इसी तरह सेम वे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इमेजेस को सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया है, उनके साथ उनको कस्टमाइज़ कर दिया। कैसे करते हैं अभी कस्टमाइज़ करेंगे, वर्ड्स को हम कैसे कस्टमाइज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि आपको जस्ट जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे साइड वाले ऑप्शन देख सकते हैं, टाइटल के नेम से आपने जो भी इसमें कस्टमाइजेशन करनी है वो कस्टमाइजेशन करें। वहाँ पे लिखें कि आपको क्या लिखना है। जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल वेब लर्नर्स के लिए इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने ऊपर से वेब लर्नर्स लिखा, उसके बाद मेक एन ऑसम वेबसाइट, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का स्लोगन है। इसलिए तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस के लिए टैब बनाया है। उसके ऊपर मैंने एक कोई रिव्यू जो हमारे किसी व्यूअर ने हमें दिया है वो रिव्यू आप लिख सकते हैं कि जैसे आपका न्यू व्यूअर आपकी वेबसाइट पे आए तो इससे थोड़ा इम्प्रेस हो कि यहाँ पे किसी ने व्यूज़ भी दिया हुआ है। तो रिसेंट वीडियोस का या अपकमिंग इवेंट को मैं रिप्लेस करता हूँ रिसेंट वीडियोस के साथ। अब उसके बाद नीचे आते हैं, आपके देखते हैं पहले किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको मैं अपनी वीडियो के टाइटल में रिप्लेस कर रहा हूँ। इस वीडियो को भी मैंने रिप्लेस किया है। अब इस थंबनेल या इस इमेज को भी आप कह सकते हैं, इसका मैंने टाइटल भी रिप्लेस कर दिया है। तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पे अबाउट द वेब लर्नर्स जो कि था, मैंने उसको भी रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने सक्सेसफुली वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। अब हम आप बटन देख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही ईजी है, इस वर्ड्स की तरह ही रिप्लेस करना है आपको। यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब और वॉच ऑन यूट्यूब, उसके बाद आप अपनी लिंक भी पुट कर सकते हैं इसके साथ। जैसे कि मैं अपनी यहाँ पे यूट्यूब चैनल की लिंक पुट करूँगा, तो अगर इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ तो जो मैंने रिसेंट वीडियोस में 2 थंबनेल लगाए थे वीडियोस के, उसको भी मैं लगा सकता हूँ। स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ पे जो टैब है वो है लर्न मोर का, तो मैं लर्न मोर अब यहाँ पे अबाउट द वेब लर्नर से अब इसको कम्प्लीटली वेबसाइट को अपडेट करने के लिए अपडेट पे क्लिक करें। मैंने अपडेट अब सक्सेसफुली ये जो कस्टमाइजेशन थी, जो चीज़ें थी मैंने रिप्लेस की थी, चेंज की थी अपनी वेबसाइट पे, अभी वो लाइव आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी URL पुट की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी कस्टमाइजेशन हो गई थी। पहले कैसी थी वेबसाइट और अब कैसी है, सारे स्टार्टर टेम्पलेट को मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे YouTube चैनल वेब लर्नर्स को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें और हमें बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और आने वाली वीडियोस में आप कैसा कंटेंट चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट।